ये प्लेलिस्ट बहुत काम की है, जिसके अंदर मैंने पूरे आरटीपी एमटीपी करवा दिया। सीए इंद्रेश गांधी इस चैनल को विजिट करके वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर चेक करेंगे तो आपको पूरे आरटीपीज और पूरे पीवाईक्यूज मई 24 से, यानी कि जब से नया न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है आईसीए का, तब से सारी चीजें यहां पर आपको एकदम सिस्टमैटिकली एक जगह पर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे किसको, अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग केस बेस्ड सिनेरियोज यहां पर देखेंगे। ये बच्चे ने मुझे एक पीडीएफ भेजा है, वो है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक आंसर्स को रिलीज नहीं किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पर मतलब वो जो अपना तो थोड़ी सी अनक्लियर पीडीएफ है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ठीक है ना, बट ठीक है, आई थिंक सो अपना काम बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। इतनी तो क्लैरिटी है इसके अंदर कि अपन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो एक एक केस सिनेरियो को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या यहां पर बोला गया। Sunset Private Limited, a private company incorporated in 2016, was engaged in large-scale project. In April 2024, company faced a several cash crunch. The board directors to raise fund urgently. On 20th April 24, one of the director, Mr. Ramesh, advanced 25 lakh to company. He orally stated that money came from his personal account but did not provide any return declaration. On 25 April 24, company also circulated a notice inviting deposits from public promising 11% return. Within 15 days, 80 lakh was collected from the public से देखो यहाँ पर क्या पब्लिक से ले रहा है भाई साहब, ये तो बहुत ही हो गया। कंपनी डिड नॉट अपॉइंट एनी ट्रस्टी, डिड नॉट डिपॉजिट 20% ऑफ मैच्योरिंग अमाउंट टू डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, नॉर इट परचेज डिपॉजिट इंश्योरेंस। इन 2024 जून कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी borrowed 2 crore from Horizon Bank against the creation of mortgage on its plant and machinery. However, company never filed the particulars of charge with ROC. In March 2025, default occurred both in repayment of deposits and repayment of bank loan. Subsequently, winding up proceedings were initiated. During liquidation, depositors filed a claim before tribunal for repayment of deposits amount along with the interest. Horizon Bank also sought to enforce the security. कर ही नहीं सकता Horizon Bank, क्योंकि अगर चार्ज रजिस्टर ही नहीं होता है तो चार्ज यहां पर void माना जाता है क्या? हाँ सर, चार्ज यहां पर void माना जाता है। अगला, meanwhile, the company has fixed its AGM on 30th September 24. The notice was issued to all members on 10th September. The schedule on the scheduled date of AGM, only one director attended within half an hour of the meeting. The chairperson adjourned the meeting to 7th of October. On adjourned date, again only one shareholder was present. But resolution regarding approval of accounts and reappointment of director were passed. Another member later challenged validity of those resolution. आया नहीं खुद और चैलेंज कर रहा है वहां पर। अगला, इन पैरेलल, अब देखो क्या बोला, a group of minority shareholders alleged that invitation for deposits was disguised attempt by directors to avoid stricter condition for raising secured loan and that company deliberately failed to comply with the deposit related provision. They filed a complaint seeking disqualification of director for contravention of the statutory requirement. The tribunal also approached to determine whether the resolution passed at the adjourned meeting could bind the absent shareholders when only one member attended. The creditor argued that such resolution could not stand in law, whereas directors maintain the said say. Adding to the complications, ministry initiated the prosecution under section 76A of Companies Act, the default for repayment of deposits, making every officer of the company personally liable with fine and imprisonment. At the same time, registrar imposed the penalty under section 86 of Companies Act for failure to register charges. Directors argued that since company was already in the process of winding up, they should not be personally liable. मारेंगे पटका director को. The tribunal had decided whether liability of 76A attracted automatically on the default and whether non-registration of charges rendered Horizon's bank security unenforceable. True that. अब देखो क्या, based on the above अपने को आंसर्स देना है। The default by Sunset Limited in repaying deposit raised from the public and initiation of proceeding under 76A will result in both company and officer in default यहाँ पर liable होंगे और इनको imprisonment होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, ओके सर। मैं आपको फैक्चुअली एक बात बताऊं, ये केस के अंदर इन्होंने एक गलती करके रखी है। एक तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ऐसा बोल के रखा है। क्या कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती
सकती है क्या? नहीं सर, केवल और केवल एलिजिबल कंपनी करती है, और एलिजिबल कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना। बट ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा तो इट्स ओके। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें ना, तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट यहाँ पर लायबल होता है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला। For failure to register charges created in favor of Horizon Bank, the effect under section 77 read with 86 is, obvious सी बात है सर, चार्ज यहाँ पर void हो जाता है against liquidator and creditor, और and the company along with officers are liable for penalty। मतलब चार्ज यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर void हो जाता है ना, हाँ सर, चार्ज यहाँ पर void हो जाता है, और यहाँ पर ऑफिसर्स को पेनल्टी लगती है क्योंकि उन्होंने चार्ज को क्रिएट नहीं किया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऐसा लॉ के अंदर बोल रखा है। ठीक है ना, चलिए सर, आ जाओ अगला। In the adjournment of general meeting where only one shareholder attended and resolution were passed, the validity of resolution will be determined। देखो एक बात ध्यान रखना, वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 103 आता है जो बोलता है यहाँ पर मेंबर्स प्रेजेंट एट एडजर्न मीटिंग टू फॉर्म अ कोरम के बारे में, वो इसके अंदर आता है। देखो सेक्शन नंबर 96 हो सकता था करेक्ट है, बट कब हो सकता था करेक्ट, जब यहां पर मान लो जिस दिन जो रिजोल्यूशन, जिस दिन मीटिंग बुलाई है उसी दिन। स्पेसिफिकली सवाल किसके बारे में बात कर रहा है, एडजर्न मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, इसलिए पर्सनली मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सी भी करके आए, पर मुझे वो उतना ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं लग रहा है। इट मे बी करेक्ट है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट मे बी करेक्ट, बट मुझे इसका आंसर बी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहां पर, क्योंकि बी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर बैठ रहा है कि जो सवाल पूछा है एग्जैक्ट उसके पॉइंट के ऊपर बैठ रहा है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? ठीक है ना, ये मैंने एक्चुअली आंसर जो इसलिए मार्क करके रखा हूं, जिस दिन पेपर हुआ था ना उस दिन बच्चे बहुत पीछे पड़े थे, सर एमसीक्यू के आंसर दो, एमसीक्यू। फिर जब एमसीक्यू के आंसर दिया तो कुछ बच्चे, सर क्यों दे दिया, क्यों दे दिया, इट में डिमोटिवेट पीपल। अरे भाई एक जगह तुम स्टैंड नहीं कर सकते, है ना, मतलब बहुत ही हो गया। तो कुछ बोल रहे आंसर दो, आंसर। फिर मैंने बोला भैया जिसको नहीं देखना है वो मत देखो, वो तो कर सकता है ना इंसान, उनको देखना भी है पर आंसर मत भी दो, ये क्या बात होगी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये क्या मतलब, बहुत ही हो गया है। तो चलो सर आ जाओ अगला, नेक्स्ट आइए अगला। केस सिनेरियो 2 एलएलपी से रिलेटेड रहने वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एलएलपी के क्या है, देखो। In the facts of the company issued private placement invitation letter to 205 identified person aggregate during the financial year. Which of the following statement is correct? उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला। The company sent right issue notices to shareholder only 2 days। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, सही है, ठीक है, ओके। 2 days यहाँ पर प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू, कंसिडरिंग सेक्शन 62 implication of conversions of LLP to company, designated partner Asha is now MD, which statement is correct? अगला। अच्छा, 2 ही क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन के लिए इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी दे दिया, वाह नालायक लोग। चलिए अब देखो, LLP was formed in 2019 by 3 practicing technologies: Asha, designated partner 1, Rohan, DP2, Meera, partner. In 2024, Novus decided to convert it into private limited company to raise institutional capital and offer stock option to employees. LLP completed conversion formalities, and on 10th October 24, company Novus Labs Private Limited was incorporated. Asha, who acted as DP, had become the MD and retained 60% of equity. Rohan became non-executive director and Meera took 10% of equity. By default, Rohan के पास 30% आ गया. While the balance was allotted to 2 angel investors को, अच्छा angel investors को दे दिया इन्होंने, बचा हुआ 30%, तो 60% इक्विटी रोहन और इसके पास है, क्या नाम है उसका, MD। ठीक है, मीरा नहीं, रोहन और मीरा ने मिलकर 10% लिया और 60% है एमडी के पास और बचा हुआ एंजल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, आइए अगला। विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, प्राइवेट कंपनी प्लान 2 फंड रेजिंग स्टेप्स। 1 November 20, the board approved private placement to identified person aggregating to 205, है ना, विच इंक्लूड्स 5 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड 10 एम्प्लॉइज। मतलब 15 को कम कर दो तो 190 हुआ है यहाँ पर, बराबर है ना, क्योंकि क्यूआईबी और एम्प्लॉइज को अपन लोग काउंट नहीं करते बच्चों आइडेंटिफाइड पर्सन के अंदर, इन्होंने उसको काउंट करके रखा है तो उसको अपन लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आ जाओ अगला। फिर देखो क्या, द बोर्ड रिलाइड ऑन द फैक्ट दैट these investors were known to the company and treated the issue as private placement. Second, in March 25, okay, company proposed a right issue to raise further working capital, that is 1 right for every 2 equity share held, and send a notice to offer to the shareholder only 2 days
प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू। कितने दिन पहले बोलो बच्चों? मात्र 2 दिन पहले दिया यहां पर इशू के। 94% ने यहां पर रिटर्न कंसेंट दे दिया था बाय ईमेल टू अडॉप्ट अ शॉर्टर नोटिस पीरियड। गलत है ना सर? थोड़ा सा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, देखेंगे आगे, सवाल तो आने दो उसके ऊपर। फिर during private placement process, some foreign subscribers were national of neighboring country that shares a land border with India। फेमा वाली चीज आती है। अब देखो, the company secretarial team received queries whether additional government approvals under FEMA were required। Meanwhile, MD received a notice from investors alleging non-compliance with the procedural formalities for private placement and warning about the invocation of penalties and refund obligation under Companies Act। The company's finance and is not sure whether 205% invitation is treated as public offer, whether QIBN employees are to be counted in 200 limit, and whether the dispatch of shorter notice for right issue is valid for this private placement, and whether Asha, previously DP, has special filing or liability exposure for procedural defaults that may arise under the relevant provision। तो यहां पर आपसे पूछा है कि सर चीजें बताना है, तो देखो सर इशू को पब्लिक ऑफर मानते हैं क्या? नहीं सर नहीं मानते। यहां पर बोला विल डीम टू बी है। फिर कंपनी नॉट फाइल एनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, गलत है। फिर देखो, द इशू विल नॉट बी डीम्ड एज पब्लिक ऑफर बिकॉज QIBN एम्प्लॉयज अंडर ESOP आर एक्सक्लूडेड, मतलब नॉट काउंटेड फॉर कंप्यूटिंग 200। आफ्टर एक्सक्लूडिंग देम द काउंट इज 190 एंड इट रिमेन्स वैलिड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। कितना भैया, मुझे कभी कभार क्या लगता है कि यार ऑप्शन पढ़ के ही आपको अंतरात्मा जवाब दे देंगे भाई आंसर तो यही वाला सही है करके। समझ रहे क्या बात को? अब देखो ना, बाकी क्या लिम्बार्ड से कुछ का कुछ देके रखा है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी अनाप शनाप देके रखा है, आपको समझ ही आएगा कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं करके ऐसा। वो बात अलग है, आपको सही पढ़ के भी ऐसे लगेगा कभी पढ़ा नहीं करके, वो बात डिफरेंट है, तभी तो पेपर हार्ड लगता है। लेकिन खैर उसको छोड़े, तो अगर मैं बताऊं तो सर यहाँ पर अपने को, लेकिन आपको आंसर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के जाए तो अपने को आंसर समझ में आ जाता है ना भाई कि क्या आंसर एक्चुअल में होने वाला है करके। ठीक है, आइए सर अगला देखो क्या नेक्स्ट। Company send a right issue to shareholder only 2 days prior to the opening of issue, considering 60 to 62 आपको इंप्लीकेशन यहां पर बताना है। अब देखो, राइट इशू यहां पर वैलिड होंगे क्योंकि मोर देन 90% लोगों का आपने अप्रूवल ले लिया, तो 2 दिन का भी एक्सेप्टेबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब देखो क्या, आशा विल बी ट्रीटेड, अब देखो यहां पर क्या कहा मैंने, बोलो आशा विल बी ट्रीटेड as officer या director for compliance purposes and then bound to filing penalty provision if default occurs। बराबर है सर, क्योंकि वो MD भी है और पुराने जमाने में, मतलब पुरानी इसमें LLP में वो DP भी हुआ करती थी। तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा इसका आंसर तो A वाला ही सही होगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। बाकी 3 एक बार पढ़ के देख लो, बाकी 3 एक बार पढ़ के देख लो। आ जाओ यहां पर नेक्स्ट। चलो केस सिनेरियो 3 देखो, 6 केस सिनेरियो दिए भाई इसके अंदर इन्होंने। अब आप देखो ना कैसी उटपटांग हरकतें कही है ऐसी है। 2 क्वेश्चन के ऊपर एक केस सिनेरियो कोई देता क्या भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है बेटा, ऐसे भी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, आओ चलो ठीक है। बट स्टिल अगर आप ये एमसीक्यूज देख रहे होंगे और आपने सितंबर वाले भी एमसीक्यूज देखे बेटा, कौन सा इजी लग रहा है आपको? बताओ मुझे जरा। सितंबर का पेपर आपने कल देखा, कल हम लोगों ने सितंबर के पेपर को सॉल्व किया था, है ना? और अभी आप जान का पेपर देख रहे हो। अभी तक तो भाई एकदम, आप सोचो ना, 45 से 50 मिनट अपने को सिर्फ एमसीक्यू करने के लिए लगे थे भाई, मतलब बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, आओ चलो अगला देखो क्या नेक्स्ट। इन हैदराबाद टेक हब हॉरिजॉन इनोवेशन लिमिटेड was fast growing company famous for digital payment solution, but in 2022 company faced a serious problem, not with the technology but with the auditor who supposed to audit financial statement. At AGM 30 September, shareholders appointed Mr. Vikas and Associates as statutory auditor for 21-22. The firm led partner Vikas Reddy was respected CA with 15 years of experience. Most of the shareholders trusted him, but one investor, Anjali Desai, who owned 10% of share, was suspicious. When Anjanji checked the auditor's background, Vikas' spouse already owned 10,000 share of 100 each, यानी कि 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हो गया ना यहाँ पर। हाँ, फिर अगला, firm has taken 50 lakh loan from Horizon in 2020, still unpaid। Oh my God, Vikas had also provided tax consultancy services। ठीक है, वो तो चलता है टू हॉरिजॉन, इट्स अलाउड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, द फर्म डिड नॉट सबमिट मैंडेटरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर से ये गलत कर दिया। अंजलि कंप्लेन टू आरओसी हैदराबाद सेइंग दैट ऑडिटर वाज इनएलिजिबल अंडर 141। इन्वेस्टिगेशन कंफर्म्ड हर क्लेम्स। आरओसी रूल्ड दैट
Vikas and Associates was ineligible and must vacate the office under section 141(4). Casual vacancy imposed the penalties. Horizon was fined 2 lakh for appointing ineligible auditor, and Vikas and Associates was fined 50,000 for accepting appointment. Further, Horizon was ordered to call EGM within 60 days to appoint new auditor. अब आपको यहाँ पर बताना है. Vikas and Associates argued that 10,000 shares held by Vikas Reddy's spouse were held in the personal capacity and not firm name. मारूंगा एक लप्पड़. ठीक है. How this argument be treated? Obvious बात है, it is not acceptable. Acceptable को कैंसिल कर दो और जो आंसर, मतलब देखो, गलत गलत चीजों को कैंसिल कर दिया तो जो बचा वही सही आंसर होने वाला है ना. दिमाग ही नहीं लगाना है. आइए अगला, नेक्स्ट. The firm did not furnish eligibility certificate before appointment. What is the importance of certificate? तो voluntary self declaration है क्या? नहीं सर. Requirement applicable only? नहीं सर, सबको है. Certificate is issued by ICAI. ये तो कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो ये तीनों आंसर नहीं है. मतलब बचा क्या? आंसर तो यही रहने वाला है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 139 की कि ऑडिटर सेटिस्फाई करता है 141 के क्राइटेरिया. इसको फुकट के 4 मार्क दिए ICAI ने, यहाँ पर कोई दिमाग लगाना नहीं था. अगला, अच्छा, और 2 मार्क देना चाहती है इसे आपको. देखो क्या, फॉलोइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसीजन, कंपनी वाज पेनलाइज्ड एंड डायरेक्टेड टू कन्वे EGM टू एड्रेस ऑडिटर्स डिस्क्वालिफिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अप्लाइज? तो देखो सर, जब ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होता है, ऑडिटर वैकेट करता है पोजीशन को, और इस वैकेशन को बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी, और कंपनी को यहां पर अपॉइंट करना पड़ता है अदर एलिजिबल ऑडिटर को. बराबर. रेगुलेटर हैज पावर टू डायरेक्ट न्यू ऑडिटर. गलत है. द लॉ रिक्वायर्स कंपनी टू रोटेट पीरियोडिकली. ये तो इसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है. भली वो सही आंसर है पर उसके लिए रेलेवेंट थोड़ी है वो. फिर कंपनी में रिटेन सेम ऑडिटर बाय पासिंग SR. ये भी गलत है. अब देखो, तीनों इतने वाहियात ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली अंतरात्मा आपकी जवाब देंगी भैया आंसर तो तुम्हारा ए ही रहने वाला है. क्या कहा मैंने? बोलो. आंसर तो तुम्हारा ए ही रहने वाला है करके. समझ में आ रहा है क्या आपको बात? अब देखो ना, बाकी 3 ऑप्शन कितने वाहियात है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे आंसर ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है कि इसका आंसर तो ए ही रहने वाला है करके. क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे. यस सर. चलो देखो क्या, अब 4th पॉइंट. ग्लोबल नहीं, private company tech services headquartered in India plans to engage in several foreign exchange transactions. Sponsorship funds USD 1,30,000 to support private tech conference abroad organized by non-government association. Remittance royalty payments totaling $1,50,000 for technical collaboration agreement for licensing software. ये तो current account transaction है. अगला, making marketing payment for exceeding 15,000 for the foreign print publication to promote inbound tourism. It's okay, चलेगा सर ये वाली चीज. अगला, sponsor of cultural tours लगने ही वाला है HRD की परमिशन. अब देखो, related to the remittance of the amount, mentioning sponsoring a private tech conference abroad. क्या कहा मैंने? बोलो. private tech conference abroad. Which of the following option is correct? Does not require approval if routed to EFC. नहीं सर, ये क्योंकि एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए वैसे ही अप्रूवल लगता है क्या? नहीं सर, वैसे ही अप्रूवल नहीं लगता है. इट इज अराउंड फ्रीली बिकॉज इट इज प्रमोशन ऑफ द ट्रेड. क्या कहा मैंने? बोलो. प्रमोशन ऑफ द ट्रेड. इसका अर्थ होता है बच्चों कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो ये वैसे ही फ्रीली परमिसिबल की कैटेगरी के अंदर आने वाला है. अगला, above said royalty under technical collaboration agreement, which of the following option is correct? Obviously again sir, यहाँ पर ये freely permissible approval होने वाला है because again this is a current account transaction. फिर बोल के रखा है कि कंपनी has made 2 remittance, marketing payment 15,000 for foreign print media allowed है सर, क्योंकि हम कोई PSU वगैरह थोड़ी है. यहाँ पर PSU के लिए रिस्ट्रिक्शन है या गवर्नमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, वो भी 3 केस में नहीं लगती है. और इसके अलावा कल्चरल टूर के लिए HRD की परमिशन. अब देखो, बोथ 1 and 2 फ्रीली परमिसिबल तो आंसर हो ही नहीं सकता. फिर 1 रिक्वायर्स अप्रूवल, 2 इज फ्रीली परमिसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वी आर श्योर, वी आर डैम श्योर कि स्पॉन्सरशिप अगर कल्चरल टूर है तो HRD की परमिशन लगती है. फिर देखो क्या, 1 इज प्रोहिबिटेड, 2 रिक्वायर्स अप्रूवल. तो ऐसे केस के अंदर ये भी नहीं होगा क्योंकि फॉरेन प्रिंट मीडिया में अलाउड था, हमने ये पढ़ा है. तो ऐसे केस के अंदर सर इसका आंसर क्या होने वाला है? बी इसका आंसर होगा कि फर्स्ट इज फ्रीली अलाउड और दूसरा प्रायर अप्रूवल, क्योंकि प्रिंट मीडिया में PSU को अप्रूवल लगता है, बाकी लोगों को अप्रूवल लगता है क्या? नहीं सर, नहीं लगता है. क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? बोलो जी, बोलो जल्दी से मुझे, क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है ना? चलो पढ़ो जल्दी से. केस सिनेरियो 5 पढ़ो. केस सिनेरियो 5 पढ़ो, बहुत प्यारा है. केस सिनेरियो 5 पढ़ो. गाबा सर को बोल दो ना, एक मैसेज डाल दो गाबा सर को कि 12 बजे क्लास लो बोलना. 12 बजे तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अपना.
चलो ले लिए भाई, उसमें क्या, चले आना बाद में। चलो केस सिनेरियो 5 देखो अब। Messrs ABC Capital Limited, a listed company, was found guilty of manipulating share prices through false disclosure in quarterly financial statements. The company's managing director, Mr. Arvind, was charged under 447 for fraud and Section 9 and 10 of SEBI regulation read with 24 of SEBI Act for misleading investors and distorting security market. ये अलग एक्ट हुआ, ये अलग। The SEBI adjudicating officer imposed monetary penalty of 25 lakh and recommended criminal prosecution. Later, special court under the Companies Act imposed a fine of 10 lakh and 3 years imprisonment on Mr. Arvind on same fraudulent act. Same act के ऊपर, ठीक है, आ जाओ। Mr. Arvind raising two obligation. He cannot be punished twice for same act of fraud under both SEBI and Companies Act. That the fine imposed under SEBI Act cannot be recovered using the Code of Criminal Procedure since SEBI are special enactments on their own mechanism. अब आपको आंसर यहाँ पर देना है 12 से 13 तक। 12 एंड 2 क्या लिखना था, एंड लिख देते यहाँ पर जब दो ही सवाल पूछा था तो, है ना। चलिए आइए सर, अब देखो क्या सर, which of the following statement correctly applies to Mr. Arvind's claim of double punishment of GCA? बराबर है सर, एक चीज ध्यान रखना, he can be tried and convicted under both enactments, लेकिन उसको पनिश ट्वाइस मिलने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा, मतलब सी इसका आंसर सही रहने वाला है। अगला सर, if SEBI 1992 does not explicitly exclude the application of Code of Criminal Procedure provisions under fine recovery, which of the following is correct? तो देखो, पहला, फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड अंडर सीपीआरसी। अगला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोविजंस लाइक इशुएंस ऑफ वारंट फॉर लेवी फाइन विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। फिर दूसरा, सेबी मस्ट रिकवर फाइन्स थ्रू सिविल कोर्ट, नहीं। गवर्नमेंट शाल इशू सेपरेट नोटिफिकेशन, नहीं सर। सेक्शन नंबर 25 ऑफ जीसी अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेबी 1992, इससे पुराने एक्ट के ऊपर सीआरपीसी ऑटोमेटिकली लगता था, भली नया एक्ट आया होगा, तो जो पुराने प्रोसीजर्स नए एक्ट में नहीं देके रखे, तो क्या पुरानी सेम प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे क्या? बिल्कुल फॉलो करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। अब यहां पर क्या बोल के रखा है बच्चों? अब यहां पर इन्होंने यहां पर बता के रखा है एलएलपी के ऊपर एक शॉर्ट केस स्टडी यहां पर इन्होंने दे के रखी है। आइए देखते हैं यहां पर। Aquarius Design LLP was incorporated on 1 April 23 with 3 partners, Arjun, Anjali and Nakul. Arjun and Anjali were designated partners while Nakul was ordinary partners contributing 5 lakh. In August 23, Nakul withdrew 3 lakh from LLP bank account without prior consent and used it to repay for personal car loan. The LLP later suffered major business loss and defaulted on a vendor on payment of 7 lakh. Meanwhile, Anjali went abroad for 6 months and stopped taking part in the management but remained formally a designated partner. In January 24, LLP admitted new partner Bhim, a relative of Arjun, but no notice of admission was filed with registrar. गलत किया, 30 दिन में फाइल करना था। Around the same time, LLP borrowed 10 lakh from Mr. Sharma, who believed Anjali was still actively managing the firm. Later, internal audit revealed that Arjun knowingly prepared a false statement of account and solvency showing profits through LLP was a serious financial trouble. The LLP failed to file that the statements within the prescribed period and continued business till October 24 when Mr. Sharma demanded the repayment. On the above facts, is Nakul personally liable for 3 lakh withdrawal from LLP? तो इसका आंसर तो यस रहने वाला है। पर्सनल यूज के लिए उसने फ्रॉड किया है तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल रहेगा। दूसरा, इज अंजलि वाज डीपी बट इनएक्टिव एंड अब्रॉड पर्सनली लायबल फॉर वेंडर डेट ड्यूरिंग व्हाइल शी वाज अवे? बिल्कुल सर वो लायबल रहेंगी, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर वो डीपी है। अगर वो डीपी है तो सारे कंप्लायंसेस के लिए अंजलि लायबल रहने वाली है क्या? बिल्कुल रहने वाली है। और अगर मान लो उसको लायबल नहीं रहना है तो इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा सर? इस केस के अंदर उसको, सुन लो ना बात को सर, इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा? इस केस के अंदर उसको नोटिस यहां पर देना पड़ेगा। अगला, is Bhim liable to Mr. Sharma for LLP debts incurred before admission since no notice for admission was filed? पहला। दूसरा, तो क्या भीम यहां पर लायबल रहेगा क्या? नहीं सर, भीम यहां पर लायबल नहीं रहेगा। जस्ट अ सेकेंड।
ओके यस। और दूसरा, इज अर्जुन लायबल फॉर एलएलपी ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम फॉल्स एसेट्स नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम। ऑब्वियस सी बात है, अर्जुन उसके लिए लायबल रहने वाला है। इसका मतलब पहले का आंसर नो है, दूसरे का आंसर यस है, इसका मतलब नो एंड यस, इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए सर, तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका क्या कंप्लीट होता है बच्चों, यहां पर आपके जितने भी एमसीक्यूज है जनवरी के वो पूरे पूरे हो जाते हैं फिनिश। कंपैरेटिवली सितंबर 25 से मैं कंपेयर करूं तो एमसीक्यूज वाज प्रिटी सिंपल। एमसीक्यू में ज्यादा मतलब ठीक है, मैं मानता हूं ये लेंदी था, पर अगर आप देखोगे तो इजी एमसीक्यूज थे। थोड़ा सा बच अगर आप केयरफुली अगर ऑप्शंस पढ़ते हो तो आपको आंसर पता चल रहा है क्या, डेफिनेटली पता चल रहा है। एक बार का चलो आखिरी का हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एलएलपी वाला सवाल था वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बाकी जो 26 नंबर के क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली काफी इजी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोकस करना, ठीक है ना। आओ दोस्तों, अब अगर हम लोग बात करें देखो किस चीज के बारे में, अब हम लोग चलेंगे यहां पर, सारे के सारे लोग आ जाओ। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर चलने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहला सवाल यहां पर क्या बोला गया है, कंपनी लिस्टेड कंपनी इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज कंक्लूडेड इट्स फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 25। कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर, मतलब 30%। बिफोर प्रोसीडिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स टू एंश्योर द प्रपोज्ड डिविडेंड कंप्लाइज विद ऑल रिक्वायरमेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, particularly those related to permissible sources and condition for dividend distribution। अगला, द समराइज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10,000 लाख, अदर कंट्रीब्यूशन है 1,000 लाख, जिससे टोटल हो रहा है 11,000 लाख। अब इसमें से कंपनी ने एक्सपेंसेस है 8,000 लाख और डिप्रिसिएशन है 1,200 लाख, तो इसके बाद पीबीटी कितना बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,800 लाख बचा, और फिर सर टैक्स प्रोविजन 450 लाख का, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 1,350 लाख का। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। सर ये जो है ना, ये फालतू देकर रखा है, टाइम पास करके रखा है, डायरेक्टली अगर ये भी दे देते ना तो अपना काम बन जाता, क्या बिल्कुल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो क्या, इन एडिशन टू द करंट ईयर अर्निंग्स, एबीसी के पास अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स है 2,000 लाख के, मतलब 1,350 लाख इस साल कमाया और 2,000 लाख के अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स है। अब है ना, एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व है 500 लाख का। अब कंपनी ने यहां पर क्या किया, द कंपनी है 100 लाख इक्विटी शेयर एंड टोटल प्रपोज डिविडेंड इज 3 पर शेयर, इसका मतलब 300 लाख कंपनी डिविडेंड यहां पर बांटना चाहती है, 3 करोड़ का डिविडेंड यहां पर बांटना चाहती है। तो सवाल बनता है क्या, कि आपको बताना है कि क्या कंपनी आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट डिविडेंड बांट सकती है क्या। ये सर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बिंदास बिंदास कंपनी करंट ईयर प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट सकती है। और दूसरा, क्या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर में से ही वो बांटना चाहती है तो बिंदास बांट सकती है, पर उस केस के अंदर फिर आपको रूल 3 की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला आपको बताना पड़ेगा कि एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए, फिर दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो है ना, माइनस करंट ईयर लॉस तो कुछ भी नहीं है, तो वो आपको उतना देना पड़ेगा। और तीसरा क्या बोला, जो बैलेंस है ना बच्चों, जो बैलेंस बचेगा वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना बचना चाहिए क्या, हाँ सर बचना चाहिए। ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन का। आई थिंक सो प्रीटी सिंपल, इसके अंदर कुछ भी एज सच बाकी सब चीजें दे के रखी है क्या, नहीं दी है। ठीक है ना, तो एकदम सिंपल कि एवरेज जो है आप उसको कर सकते हो, और दूसरा अगर मैं बात करूं 10% वाला हो गया, और तीसरा बैलेंस वाली चीज हो गई। बस आपको इतना बताना है, बाकी ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला नेक्स्ट। बी, MNP Tech Limited, fast growing startup in Bangalore recently issued equity share at a premium of 200 per share, raising security premium balance of 10 per share। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना है, 10 करोड़ का। अब सीएफओ स्पा को इस्तेमाल करना चाहता है इन कामों के लिए। टू राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता सर, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कर सकता है सर, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकता है सर, टू डिस्ट्रीब्यूट 1 करोड़ एज इंटरियम डिविडेंड नहीं कर सकता है सर। याद है आपको बिप्स को बीपी हुआ, अरे याद है क्या आपको, बिप्स को बीपी हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म था बच्चों, वही आपको लिखना है। तो 2 चीजों के लिए नहीं कर सकता है और 2 चीजों के लिए कर सकता है। ये अकाउंट्स का सवाल है बेटा, ये अकाउंट्स में भी आता है, ये लॉ में भी आता है ना, ये अकाउंट्स में भी आता है और लॉ में भी आता है, तो ये उसका आंसर है।
क्या आपको इतनी बातें क्लियर है क्या? बताइए मुझे जल्दी से, क्या ये अभी तक अपना 10 नंबर के क्वेश्चन हुए क्या? 10 नंबर के क्वेश्चन अभी तक आसान है क्या? ये देखो, ये अपने क्वेश्चन बैंक का सवाल है, और अगर मैं बात करूं ये भी अपने क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ये भी अपने क्वेश्चन बैंक में दे के रखा है कि स्पा के यूजेस क्या क्या है करके, बस ये उसी के ऊपर सवाल बोल के रखा है, और क्या बोल के रखा है यहाँ पर, है ना? चलिए सर आ जाओ अगला। नेक्स्ट देखो, क्या सी वाला क्वेश्चन देखेंगे, आइए। Skynex Limited incorporated in India 2024 is engaged in manufacturing of lithium batteries for two-wheelers. The company market produced domestically and export to Mexico during the financial year. Company is engaged in following transaction: commission paid to agent of Mexico for sale of the company's, देखो, company's commercial plot in India in tune of USD 50,000 against the inward emittance of USD 9,50,000। मतलब मैंने यहां पर क्या दिया है ना, मैंने यहां पर दिया USD 50,000 का कमीशन उसको। अब मैं मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकता हूं बच्चों? जरा मुझे एक बात बताइए, मैं मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकता हूं? अपन ने देखा था 5% ऑफ इनवर्ड रिमिटेंस यानी कि 9,50,000, और यूएसडी 25,000, विच एवर इज मोर। क्या कहा मैंने? बोलो विच एवर इज मोर। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर सर, यहां पर मैं दे रहा हूं 50,000, अब 5% एक बार करके देखो तो 47 समथिंग कुछ आने वाला है, क्योंकि 95,000 का 10% होता है। 95,000 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूंगा यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है 47 समथिंग आने वाला है, और मैं पे कर रहा हूं 50,000 रुपए। इसका मतलब मुझे अप्रूवल लगने वाला है क्या आरबीआई का? हाँ सर, इस केस के अंदर आपको अप्रूवल लगने वाला है, क्योंकि लिमिट के ऊपर है। क्या कहा मैंने? बोलो लिमिट के ऊपर है। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? चलिए सर आ जाओ अगला, नेक्स्ट। अब देखो, Bob, the director of Skynex Limited, along with his wife, major son, and father, purchased a property in Mexico holding equal share in the property, collectively remitted 10 lakh during financial year. Bob confirmed that all family members complied with terms and condition and amount set is within the limit। बराबर है ना? क्योंकि देखो LRS की लिमिट है $2.5 लाख पर मेंबर की, इंटू अगर मैं 4 करूंगा तो लिमिट कितनी हो जाती है? $10 लाख की हो जाती है। और ये 4 लोग हैं, चारों के इसको अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्लब कर रहा हूं, तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल। क्लबिंग कब अलाउड है बच्चों? जब ये लोग को ओनर बन रहे। अब देखो ना, इन्होंने क्या बोला? अलॉन्ग विद द वाइफ, मेजर सन एंड फादर परचेज द प्रॉपर्टी। इसका मतलब लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग को ओनर है। तो को ओनर है तो लिमिट क्लब हो सकती है क्या? हाँ सर, क्योंकि ये को ओनर है तो यहां पर लिमिट क्लब हो सकती है। क्या कहा मैंने? बोलो लिमिट को आप यहां पर क्लब कर सकते हैं। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर का, अच्छा सवाल पूछा ये वाला। कंफ्यूजिंग सवाल नहीं है, इजी सवाल है। अगर आपने डिटेल में सारी चीजों को पढ़ के गए तो ये आपको जम ही जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन अगर आपने आधा अधूरा कुछ छोड़ छाड़ के गए तो फिर उस केस के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होता है फिर। ठीक है, आइए अगला देखो। क्या अमित प्रकाश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996 in Dehradun for expanding business and manufacturing automobiles. Also required capital, and the company issued 10 lakh equity share of 10 each at a par to public by issuing prospectus. The prospectus discloses minimum subscription amount of रुपीज 50 लाख रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि मुझे एप्लीकेशन के तौर पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो चाहिए, पर उसमें 50 लाख रुपए आने चाहिए। अब 50 लाख मतलब 10 लाख इंटू 5 अगर मैं करूं तो 50 लाख। अब हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन मनी पर मिनिमम 25% पैसा आना चाहिए, तो 10 रुपए का 25% कितना होता है? 2.5 होता है। इन्होंने तो 5 रुपया बुलाया है, तो चल जाएगा क्या? हाँ सर चल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, the prospectus further reveals that company has applied listing of share in recognized stock exchange on which application is rejected। याद करो, एक सेम क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में है, जहां पर 2 स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देखता है, एक उसका रिजेक्ट कर देता है। तो हमने बोला था अब वो इशू नहीं कर सकता, मतलब अब वो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज मना कर देता है सिक्योरिटीज को लिस्ट करने से, तो उस केस के अंदर क्या आप यहां पर चीजों को कर पाएंगे क्या? नहीं सर, आप चीजों को फर्दर नहीं ले जा पाएंगे, यानी कि अलॉटमेंट और बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। अब इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 50 लाख ऑन शेयर एप्लीकेशन, देन प्रोसीडेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आपको अबव केस स्टडी देखना है तो सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर 39 को बताना है
कि मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 40 में आपको बताना है यहाँ पर क्या, कि अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो मैं फर्दर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स या अलॉटमेंट नहीं कर सकता, और अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे को उस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्या कहा मैंने, बोलो, अलोंग विथ इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से, रिफंड करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या इंटरेस्ट और पेनल्टीज वगैरह लगने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यहां पर लगने वाली है। ओके सर, आ जाओ अगला। अब देखो ये एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है बच्चों। एलिजिबल पब्लिक कंपनी है मतलब ये क्या कर सकती है, 25% पैसा बुला सकती है यहाँ पर पब्लिक से, और 10% जो पैसा है बच्चों ये बुला सकती है किससे, ये बुला सकती है अपने मेंबर से। ऐसे ऐसे दोनों को मिला के 35% ये पैसा बुलाती है। किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड स्पा का, तीनों का टोटल कर दो कितना हो रहा है यहाँ पर, 30 करोड़ रुपए टोटल हो रहा है। अब देखो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट मेंबर से कितना है, मेंबर से मैं बुला सकता हूं 10% यानी कि 3 करोड़। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है 2 करोड़, मतलब और मैं 1 करोड़ रुपए का मेंबर से बुला पाऊंगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं यहां पर 25%, मुझे एक बात बताओ, 30 करोड़ का 25% कितना होगा, 7.5 करोड़ रुपए होगा। ये मैं पब्लिक से बुला सकता हूं। ऑलरेडी मैं कितना बुला लिया हूं, 5 करोड़ का, मतलब और मैं 2.5 करोड़ का बुला सकता हूं, और एक्स्ट्रा बुला सकता हूं। अब देखो यहां पर कंपनी बोल रही है कि फर्दर हम लोग डिपॉजिट्स को बुलाना चाहते हैं 3 करोड़ मेंबर से। भैया लिमिट तो 2.5 करोड़ की बची है, नहीं बुला सकते। और हम लोग 2 करोड़ रुपए यहां पर बुलाना चाहते हैं किससे, अरे नहीं नहीं गलत हो गया सर, 3 करोड़ यहां बुलाना चाहते हैं, नहीं बुला सकते। फिर देखो पर्सन अदर देन मेंबर्स यानी कि जनरल पब्लिक से 2 करोड़ रुपए बुलाना चाहते हैं, क्या बुला सकते हैं क्या? हाँ सर बुला सकते हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ की और लिमिट बची हुई है, और आप 2 ही करोड़ बुलाना चाहते हो तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। ओके, अब आपको एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन क्या करना, हमने तो आंसर ही निकाल दिया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकल गया हमारा। कुछ नहीं, आपको सबसे पहले एलिजिबल पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखना है, फिर आप बोलोगे कितना मेंबर से विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पब्लिक से, उसके कैलकुलेशन बताना, और फिर मैक्सिमम अमाउंट का कैलकुलेशन भी बताते हुए चलना। गॉट इट? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर? यस, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी से बोलेंगे। अभी तक सिंपल सिंपल ऐसा कोई भी एकदम खतरनाक वाला पॉइंट दिखा क्या अपने को? अभी तक नहीं देखा। जो एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था वो मैंने आपको मार्क करवा दिया है ना, ये अपन ने लिखा नहीं, लेकिन 1 के सी का कुछ है ना, ये 1C2, 1C2, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या, ABC Limited is in the business of manufacturing life-saving drug. The company has a plant in Kerala. The turnover of last financial year crossed 52 crore. During first quarter of current financial year, the company turnover already reached 50 crore. The company is expecting turnover of 200 crore. Company held its board meeting and decided, according to GCA, by what date must ABC file cost auditor or appointment and how it is timeline is calculated. देखो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग 1 अगस्त 2024 को लिया था। अगला, ABC Limited failure to appoint cost auditor, whether it is statutorily required, constitute an offense under 148. What is meant by offense under General Clauses Act? तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है सर, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना पड़ता है। सर कॉस्ट ऑडिटर को कितने दिन में अपॉइंट करना पड़ता है? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग से एक तो 30 डेज के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। क्या कहा मैंने, बोलो, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ता है कॉस्ट ऑडिटर को। ओके सर, अब 30 दिन होता है, 30 सितंबर, और फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन आते हैं लगभग लगभग 27 सितंबर के पास। तो हमको 27 सितंबर तक क्या कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, हमको 27 सितंबर तक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपको टाइम लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि विद इन, क्या कहा मैंने, बोलो, विद इन 180 डेज। अब ये विद इन 180 डेज में हम लोग क्या
करते हैं कि 1 अप्रैल जो 30 फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 180 डेज, तो उसमें 31 मार्च को काउंट नहीं किया जाता है, फर्स्ट सीरीज ऑफ लेटर को एक्सक्लूड किया जाता है, और जो लास्ट सीरीज ऑफ लेटर है 27 सितंबर उसको इंक्लूड किया जाता है। सेम गोज विद द केस ऑफ द बोर्ड मीटिंग से 30 दिन के केस में, और अकॉर्डिंगली आप यहां पर कॉस्ट ऑडिटर को क्या करते हो, अपॉइंट करते हो। अब दूसरी चीज यहां पर क्या देके रखिए कि ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी एक्ट या ओमिशन जो भी पनिशेबल है लॉ के अंदर, उसे हम लोग ऑफेंस कहते हैं। अब अगर आपने यहां पर अपॉइंट नहीं किया ऑडिटर वगैरह को, तो क्या कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं कि इस ऑफेंस के लिए? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। क्या कहा मैंने, बोलो? बिल्कुल बिल्कुल वो लोग रिस्पॉन्सिबल यहां पर रहने वाले हैं। समझ में आया? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड का ए, थर्ड का ए पढ़ो। देखो क्या सर, group of five professionals decided to start a private limited company in anti-drone solution sector in a name of Drone Private Limited in April 25. The company wants to have registered office in Mumbai. On April 2, 25, it applied for name reservation through run form and received approval on 6 April. On May 15, due to delay in documentation, spicy form INC 32 form incorporation was filed after 39 days of the date of name reservation. भैया 20 दिन के लिए तो नाम रिजर्व रहता है, और अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो और 20 दिनों का मिल सकता है, पर यहां पर एक्सटेंशन के बारे में सच कुछ लिखा नहीं है अभी तक, तो हम लोग मानेंगे थोड़ी। फिर कंपनी प्रपोज 2 directors, 1 Indian resident, 1 foreign national residing in US. Foreign director did not have DIN number and his passport was notarized but not apostilled. The company's registered office address was not finalized at the time of filing INC 32 of MOA AOA. चलता है, वो कोई बात नहीं है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वहां से 30 दिन के बाद भी अगर आप फाइनल करते हो तो चलेगा, है ना? आ जाओ। was signed electronically, but one subscriber used digital signature of third parties consultant with verbal consent. अब आपको बताना है what was the name of Drone Private Limited still valid when INC 32 was filed on 15 में? तो इसका जवाब होगा नहीं सर, it will be invalid। क्यों? क्योंकि नेम रिजर्वेशन केवल और केवल 20 दिनों के लिए नाम को रिजर्व करता है जब आप रन फॉर्म फाइल करते हो, रिजर्व यूनिक नेम का फॉर्म। सर अगर आपको और एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको फीस को पे करना पड़ता है, पर यहां पर कुछ एडिशनल फीस के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम अज्यूम नहीं करेंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अब नाम क्या इनवैलिड हो गया होगा क्या? हाँ सर, नाम यहां पर इनवैलिड हो गया होगा। अगला, क्या ये मैंडेटरी है बच्चों यहां पर कंपनी को कि रजिस्टर्ड ऑफिस को बनाना है टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? नहीं सर, इट इज नॉट मैंडेटरी। टाइम लिमिट क्या है यहां पर? 30 डेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, क्या कहा मैंने, बोलो, आप अपने यहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस को बना सकते हो क्या? बिल्कुल, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस को फाइनलाइज आप यहां पर कर सकते हो, ऐसा मैं यहां पर कहना चाहता हूं। अगला, नेक्स्ट तीसरा देखो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ कंपनी फेल्स टू फाइल डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन टाइम लिमिट एंड फेल्स टू कैरी ऑन ऑपरेशन? देखो सर, सेक्शन यहां पर INC 20A, क्या कहा मैंने, बोलो, आपको INC 20A फॉर्म फाइल करना पड़ता है कितने दिनों में? 180 दिनों में। किसके पास? ROC के पास। और किस चीज को लेके आपको सबमिट करना पड़ता है कि हमने हमारा जो बिजनेस है ना, हमने वो बिजनेस को क्या कर दिया, चालू कर दिया। अब समझो आप बात को, अगर आपने INC 20A 180 दिन में फाइल नहीं किया और ROC के पास रीजन टू बिलीव है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चालू नहीं किया, तो ROC क्या कर देंगी? रिमूवल ऑफ कंपनी कर सकती है। क्या कर सकती है, बोलो बच्चों? ROC रिमूवल ऑफ कंपनी कर सकती है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 से यह सवाल पूछा गया है, ठीक है ना? तो रिमूवल ऑफ कंपनी ROC कर सकती है, यानी कि कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगी। क्या कर देंगी, बोलो जल्दी से? कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगी, ऐसा यहां पर कहा गया है। क्या आपको इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई है क्या? बोलो 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 जल्दी से, क्या हम आगे बढ़े? अगला देखो, क्या अगला पढ़ो, बी वाला पोर्शन, बी वाला पोर्शन पढ़ो। देखो क्या, LMN Limited created a charge on one of the plant and machinery in favor of financial institution. Company secretary was on leave when charge was created to avoid delay. Account officer
of company entered particulars of charge with ROC without authorization of board. गलत बात है, एक तो CS या बाप करता है बच्चों एंट्री. अगला, later dispute arose between two creditors regarding priority of charges. One creditor challenged the validity of registrar entries, claiming that entry was unauthorized and not duly authenticated as per law. Based on the compliances, examine whether entry made in register of charges by accounts officer legally valid and what consequences may follow in case of non-authentication. तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो CHG 7 के अंदर यहां पर क्लियर कट बोल के रखा है यहां पर क्या कि बाप यहां पर क्या करता है, बोर्ड ऑथराइज पर्सन एंट्री को यहां पर ऑथेंटिकेट करता है. मतलब सर यहां पर बोर्ड ऑथराइज पर्सन ही एंट्री कर सकता है किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर. सर अगर इसको ऑथेंटिकेट करना है तो ऑथेंटिकेट एक तो CS करेगा, नहीं तो बाप करेगा. मान लो अगर आपने ऑथेंटिकेशन सही से नहीं किया, क्या कहा मैंने, बोलो, मान लो अगर आपने ऑथेंटिकेशन सही से नहीं किया तो इस केस के अंदर क्या होगा सर, इस केस के अंदर जो प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस है, मतलब जो लेंडर क्रेडिटर है वो अपनी प्रायोरिटी लूज कर जाएगा और ये चार्ज अपने आप में क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है. मतलब कल चल के अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो लिक्विडेटर इसे क्या मानेगा, इस चार्ज को वॉइड मानेगा. क्या मानेगा बोलो जल्दी से मुझे, इस चार्ज को वॉइड मानेगा सर, ऐसा यहां पर बोला गया है. अगला, sir, what are the four differences between rule of beneficial construction and rule of exceptional construction? तो देखो, rule of beneficial construction या exceptional construction के बारे में बात करेंगे. पहला तो क्या है बच्चों यहां पर, सर रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो मिसचिफ अवेलेबल है लॉ के अंदर उसको सप्रेस करना चाहता है. पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वर्ड्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि वो मतलब जो उसका वो लिटरल मीनिंग से जो डेविएट कर रहा है ना, उस एब्स्ट्रडी, उस कंफ्यूजन को सिर्फ उतना ही दूर करो. मतलब वर्ड जितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या इंटरप्रिटेशन सही होगा वो करना इज एन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. सर एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो एक रेमिडियल लेजिस्लेशन जैसा होता है, और ये वाले जो चीज है बच्चों, लिटरल जब शब्द का प्रयोग किया जाता है और रिजल्ट्स अगर अनवर्केबल हो जाते हैं, रिजल्ट्स अनअचीवेबल हो जाते हैं, तब एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है. सर हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बेनिफिशियल में कर सकते हैं, पर रूल में हम लोग मॉडिफाई करते हैं लैंग्वेज को सिर्फ उतना जो यहां पर जो गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, बाकी सच बाकी चीजों को अपन लोग उल्टा पुल्टा नहीं करते हैं. अगला पढ़े, फोर्थ का ए पढ़ो, फोर्थ का ए पढ़ो जल्दी से. फोर्थ का एकदम अनएक्सपेक्टेड टॉपिक में से आ गया, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जनरली MCQ में पूछना चाहिए. देखो क्या, Board of Directors of XYZ Petrochemicals Limited consist of Mr. R, Managing Director, Mr. N, Director, Mr. P, Director, A, Chairperson, Mr. D, CFO, not Director, and Mr. C, Company Secretary. The board, as policy, does not authorize Chairperson of the company to sign financial statements. Profit and loss balance sheet were signed by Mr. N, Director है, P, Director है, और A, Chairperson है. Examine whether the authentication of financial statement was in accordance with the provision. तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करता है बच्चों, चेयरपर्सन साइन करता है, या और दो डायरेक्टर साइन करते हैं जिसमें से एक MD होता है. अब यहां पर चेयरपर्सन को अलाउड नहीं था तो दो डायरेक्टर साइन करना था. जैसे अगर मान लो मिस्टर P साइन करते तो मिस्टर R को तो साइन करना ही करना चाहिए था, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को CFO भी साइन करता है, CEO भी साइन करता है और CS भी साइन करता है. क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों लोग भी इसके साथ साइन करते हैं. तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सही हुआ क्या, नहीं सर सही नहीं हुआ. आप बताओगे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करना है तो ये लोग करते हैं, और यहाँ पर सिंस ऐसा नहीं हुआ तो ऑथेंटिकेशन को वैलिड नहीं माना जाता है. अगला, सर आपका आंसर क्या होता अगर यहां पर OPC होता तो OPC के केस में एक डायरेक्टर ही बच्चों क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करता है. तो उस केस के अंदर आंसर यहां पर सही बन जाता क्या. हाँ, अगर कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर लेगा तो काम इनका बन जाएगा. ऐसा आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा आपको यहां पर बताते हुए चलना है. क्या आपको इतनी बातें क्लियर? ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट. सेकेंड इजी क्वेश्चन इट वाज. सेकेंड देखो क्या, LLP is engaged in the business of providing software consultancy services. Due to economic slowdown, LLP was unable to meet obligation towards some creditors. The management of LLP proposes compromise and arrangement with creditor to restructure outstanding debt,
extending repayment periods, waiving portion of interest. LLP files an application before the tribunal seeking directions to convey a meeting of its creditor. At a meeting, creditor representing 80% of total value of debts agree to propose arrangement. उतना ही वही तो चाहिए था अपने को. सर देखो कॉम्प्रोमाइज कब वैलिड होता है बच्चों? जब मेजोरिटी हैविंग या रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिट अगर हाँ बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि चीजें वैलिड हो जाती है. अब यहां पर तो 80% है, इसका मतलब क्या हो गया? सर वैलिड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, आइए. Tribunal, after ensuring that all material facts, including LLP's latest FS and disclosing pending tax investigation has been presented, sanctions the compromise. However, LLP fails to file the tribunal order with registrar within the prescribed time. अब एक चीज ध्यान रखना, ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर करता है बच्चों, ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल आता है ना, ये 30 दिनों के अंदर, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अगर एलएलपी फाइल नहीं करती है आरओसी के पास, तो ये जितना भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है ये एनफोर्सेबल नहीं होता है और एलएलपी के ऊपर पेनल्टी लगती है. क्या? हाँ सर, फिर एलएलपी के ऊपर यहां पर क्या लगती है बच्चों? पेनल्टी लगती है. मतलब मैं बोल रहा हूं कि सर जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, ये ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को आपको देना पड़ता है आरओसी को 30 दिनों के अंदर. आपने नहीं दिया, मान लो आपने फेल हो गए, तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो होता है ना, ये क्या एनफोर्सिएबल होगा? क्या नहीं सर, अब ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा. क्या कहा मैंने? बोलो, अब ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा सर, ऐसा यहां पर बोला गया है. क्या बात है? क्लियर? ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट. अब देखो नेक्स्ट, statutory interpretation becomes essential when the language of statute is unclear and leads to absurdity. Discuss the circumstances which interpretation of statute is applied. मतलब आपको यहां पर बताते हुए बेसिकली चलना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्या कहा मैंने? बोलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यहां पर कब अप्लाई होता है ये आपको बताते हुए चलना है. नॉर्मल चीज है कि जब यहां पर सर इंटरप्रिटेशन अगर एब्सर्डिटी क्रिएट करता है, पॉसिबल दो इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर रहा है या डिफीट कर रहा है प्रोविजंस ऑफ लॉ को, तो वहां पर जनरली इंटरप्रिटेशन आता है और आपने उन सारी चीजों का आंसर देते हुए चलना है. डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है. अगला देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखो. Zentech Limited, a company incorporated in Singapore, has a branch office in Bengaluru, India. The financial year of company ends on 31st March 25. As per the provision of Companies and Zentech is required to file certain documents with ROC every year. Okay sir, every year. ये फॉरेन कंपनी है तो इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स को हर एक साल बच्चों क्या करना है? हर एक साल इसको सबमिट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? बोलो जल्दी से. हर एक साल इसको सबमिट करना पड़ता है सर, ऐसा यहां पर बोला गया है. ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो सर, फिर देखो क्या बोल के रखा है. However, due to internal audit delays, its Singapore quarters company could not finalize financial statement by the end of September 25. Management seek clarification what documents need to be filed by Zentech along with financial statement. तो देखो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इंडियन ऑपरेशन के सबमिट करना पड़ता है. फिर दूसरा, आपको लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका सिंगापुर में हेडक्वार्टर है, वो एज इट इज आप सीएफएस दे देते हो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके. और इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्लस रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के, क्या कहा मैंने? बोलो, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उन सारे, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करते हो बच्चों? इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ता है. सर कौन से समय तक ये डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मली फाइल हो जाना चाहिए बच्चों? फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से 6 महीनों के अंदर. क्या कहा मैंने? बोलो, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से 6 महीनों के अंदर ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाने चाहिए. क्या? हाँ सर, हो जाने चाहिए. बहुत बढ़िया सर, बस बहुत ही चिल्लू सा सवाल पूछा था चैप्टर नंबर 11 के ऊपर. अगर आप जाके देखेंगे तो इसको, इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आपको रेगुलर क्लास में स्टार मार्क करवा के रखा हूं. ये जो टॉपिक है अभी तक पूछा नहीं गया था, अब इन्होंने पूछ लिया कि सर कौन से स्टेटमेंट यहां पर दे सकते हैं करके. समझ में आया क्या आपको बात है? ऐसा. आइए अगला देखो, क्या अपने क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे. अगला, अमित Priya were partners in XYZ LLP as a consulting firm. Recently, Priya moved to a new address but forgot to notify LLP within required period. Required period कितना है? 15 दिन का required period होता है बच्चों, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है प्रिया को. और a month later, Amit cousins Ramesh expressed interest in joining LLP as a partner and after few discussion he was accepted as a new partner.
However, LLP did not immediately update ROC regarding Priya's address or change in admission. After 45 days of joining Ramesh, LLP filed a notice with ROC about these changes. गलत किया, देखो प्रिया ने 15 दिन में बताना है और जब से चेंज हुआ है LLP वहां से 30 दिनों के अंदर ROC को बताती है. अब दोनों केस के अंदर क्या इन्होंने डिफॉल्ट किया क्या? हाँ सर, दोनों केस के अंदर इन्होंने यहाँ पर डिफॉल्ट किया कि जहां पर 30-30 दिनों के अंदर इनको क्या करना चाहिए था, 30-30 दिनों के अंदर इनको बताना चाहिए था. पर इन्होंने बताया क्या? नहीं सर, इन्होंने नहीं बताया. तो इस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे सर? इस केस के अंदर हम लोग यहां पर ये बोलेंगे कि सर यहां पर डिफॉल्ट हुआ है और एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या लायबल रहेंगे क्या ऑफेंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लोग लायबल रहने वाले हैं. किसके लिए बच्चों? ऑफेंसेस के लिए. किसके लिए? जल्दी से बोलेंगे. दे विल बी लायबल फॉर ऑफेंसेस के लिए. सर कितनी पेनल्टी होती है? 100 रुपीज पर डे की डीले की पेनल्टी होती है एलएलपी के ऊपर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर. ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला. नेक्स्ट. Under an enactment, excise duty rupees 10 is levied on 100 liters of certain chemical produced in a factory. During inspection, it was found that factory A has produced 350 liters of chemical but had paid duty on only 300 liter, arguing that act only specified duties per 100 liters and does not mention fractional quantities. क्या फालतू बातें यहाँ पर करके रखी है? ड्यूटी टू बी पेड इन प्रो राटा, ड्यूटी टू अप्लाई प्रो राटा. याद है क्या आपको टॉपिक? ड्यूटी टू अप्लाई प्रो राटा, अप्लाई प्रोराटा वो वाला टॉपिक है. और उसके हिसाब से आपको 350 लीटर के ऊपर ड्यूटी को पे करना पड़ेगा. क्या? हाँ सर, 350 लीटर के ऊपर आपको ड्यूटी को पे करना पड़ेगा. ठीक है, आ जाओ सर अगला 6 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन अपने हो गए बेटा, और आप 5 क्वेश्चन आपने देख लिया कि कैसे पूछे गए थे करके. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सितंबर 25 जनवरी 26 में पेपर इजी कौन सा है, तो दूर दूर तक जनवरी 26 का पेपर का बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू सितंबर 25. सितंबर 25 का पेपर ट्रिकी भी था और पेपर लेंदी भी था. अगर मैं बोलूं कि उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3.5-4 घंटे मिलेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे सितंबर का पेपर. लेकिन जनवरी का पेपर इजी भी है, बस ये उस टॉपिक के अंदर से जो थोड़े से अनएक्सपेक्टेड है. तो बच्चा इसको रिवाइज नहीं करता है ना, क्योंकि उसको टॉप 50 और टॉप 60 सेक्शन करके जाना है. उसको थोड़ी बाकी सिलेबस थोड़ी पूछती है आईसीआई, और आईसीआई ने क्या किया? बाकी सिलेबस में से ही पूछा. तो इसका मतलब अब समझिए बात को, पूरा गड़बड़ क्या हो गया यहाँ पर, है ना? पूरा गड़बड़. अब समझ रहे? क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो काफी सिंपल है भाई. मई 25 और सितंबर 25 का पेपर मैं कहता हूं सब अटेम्प्ट में पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, प्रोवाइडेड आपने सारी चीजें पढ़ के जाना चाहिए. अब देखो ना यार, ये पूरे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक के, ये भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है. ऊपर में लिखाना भूल गया आपको कितने, मतलब मैं कह रहा हूं ना आपसे 80 to 85% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक. अगर आपने क्वेश्चन बैंक को शिद्दत से करके चले गए भाई, मैं बता रहा हूं आप क्रेजी मचा के आ जाओगे आप पेपर में. बट द थिंग इज कि वो करते नहीं है हम लोग, जो करना चाहिए है ना, और जो नहीं करना चाहिए वही हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है और वहीं पर थोड़ा सा मार्क्स जोल का आ जाते हैं फिर. ठीक है, आइए सर अब देखो क्या अगला. मोनिका सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड एज ओपीसी अंडर द Companies Act 2013. Mr. Gautam Kumar is sole member and director of company with financial year ending on 31st March. Company is preparing to comply annual filing and disclosure requirement. क्या बोला बोलो बच्चों? Annual filing and disclosure requirement. अब Mr. Gautam is uncertain whether his company is required to hold AGM. मुझे एक बात बताओ, क्या ओपीसी को AGM रखना पड़ता है क्या? नहीं सर, ओपीसी को AGM नहीं रखना पड़ता है. उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि आप AGM को मत रखना, आप सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर एंट्री पास कर देना और प्लस साइन कर देना है और डेट डाल देना मेंबर के द्वारा, और हम लोग मान लेंगे कि आपने क्या कर लिया है, आपने AGM को हेल्ड कर लिया है. ठीक है, ओके. अगला सर बहुत ही सिंपल सा, डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेजोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन था. अगला देखो क्या. सरस वेंचर लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, हैज अ बोर्ड कंप्राइजिंग 7 directors. A group of shareholders holding 1.2% of voting power has expressed dissatisfaction with one of the director, Mr. Ankur Chabra, and has proposed to his removal under section 169 of Companies Act. The company's AGM is scheduled for 25 August. On 1 August कंपनी रिसीव स्पेशल नोटिस, मतलब 24 दिन पहले इनको नोटिस मिल गया बच्चों, बराबर ना? ओके. प्रपोजिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अंकुर छाबरा फॉर अपकमिंग एजीएम.
अब आपका हाउएवर कंपनी सब्सिक्वेंटली फेल टू नोटिफाई द मेंबर्स ऑफ स्पेशल नोटिस। अब आपको यहां पर बताना है वैलिडिटी ऑफ द स्पेशल नोटिस के बारे में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो स्पेशल नोटिस भेज कौन सकता है? 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन और इक्वल टू 5 लाख। तो इस सिचुएशन के अंदर ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं बच्चों? स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं 4 चीजों को लेके: अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। इन 4 चीजों के लिए स्पेशल नोटिस को भेजा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मुझे एक बात बताइए, और स्पेशल नोटिस को कब भेजना पड़ता है? कम से कम 3 दिन पहले। कम से कम यहां पर क्या कहा मैंने? बोलो। कम से कम नहीं, कम से कम 3 दिन पहले नहीं है, कम से कम यहां पर आपको भेजना पड़ता है 21 दिन पहले आपको भेजना पड़ता है, पर 45 डेज के पहले भी नहीं आना चाहिए, बराबर है ना? तो ऐसे केस के अंदर ये तो 24 दिन पहले भेजा है, तो 24 दिन पहले भेजा है, तो क्या यहां पर स्पेशल नोटिस वैलिड होगा क्या? हाँ सर, ये स्पेशल नोटिस एब्सोल्युटली वैलिड होगा, और ये बिल्कुल भी गड़बड़ मानी जाएंगी क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी गड़बड़ यहां पर नहीं मानी जाएंगे। मतलब क्या स्पेशल नोटिस वैलिड हुई क्या बच्चों? हाँ सर, स्पेशल नोटिस यहां पर वैलिड हुई। अब सवाल बनता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फेलियर टू नोटिफाई द मेंबर्स। अब सर मान लो, देखो, एक बार कंपनी को स्पेशल नोटिस मिली ना, उनको मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले मेंबर्स को बताना चाहिए। अगर आप यहां पर फेल कर जाते हो तो इस केस के अंदर जो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एजीएम के ऊपर पास होगा ना टू रिमूव अंकुर छाबरा, वो इनवैलिड होगा, और वो अपने आप में चैलेंज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। इस एक और चीज बता दूं मैं आपको। अब इसके साथ साथ जो मिस्टर छाबरा डायरेक्टर है ना, आपने क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया नहीं होगा, तो इस केस के अंदर उसके पास राइट टू हर्ड आ जाता है, या वो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है, या वो मेंबर्स को नोटिफाई कर सकता है अपने स्टैट्यूटरी राइट के बारे में कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी सुनो करके। ऐसा बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट। RMP Private Limited is unlisted company having paid up capital of 6 करोड़ और more and annual turnover of 90 करोड़ और more। ठीक है, आइए अगला। Company has not required financial statement as per company's accounting standards. The company filed its financial statement for financial year 24-25 in form AOC4 normal form and not XBRL। ठीक है, अब स्टेट द क्लासेस ऑफ कंपनी जिनको XBRL फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, और एग्जामिन करो कि क्या ये प्राइवेट कंपनी ने प्रोविजंस का कंप्लाई किया है नहीं किया। तो देखो, XBRL किसको लगाना पड़ता है? XBRL लगाना पड़ता है लिस्टेड कंपनी को, फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिसका जो टर्नओवर है बच्चों, ये अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस के अंदर XBRL लगता है। मुझे एक बात बताइए यहां पर, मुझे जरा एक बात बताना कि क्या इनको XBRL लगने वाला है क्या? जरा मुझे एक बात बताओ यहां पर। सर, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 50 की नहीं है, यहां पर 5 करोड़ की लिमिट है, सॉरी 5 करोड़ की लिमिट है। अब पेड अप कैपिटल इनका 6 करोड़ हो गया, 6 करोड़ हो गया। तो इस केस के अंदर मुझे जरा एक बात बताइए, मुझे जरा एक 5 करोड़ की लिमिट होती है इसकी, 5 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट है यहाँ पर, ठीक है ना? तो इस केस में मुझे बताओ, अगर ये 6 करोड़ हो गया, मैं देख रहा था आप तो चैट बैट के अंदर आपको किसी को याद नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, याद नहीं होगा अभी चैप्टर नंबर 9 का, बट जब आप रिवाइज करेंगे टेस्ट वगैरह के लिए तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना? तो 5 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट है, तो 5 करोड़ के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल जा रहा है, तो इसने XBRL को यूज करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है क्या दोस्तों? हाँ सर, इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है। आ जाइए सर अगला, नेक्स्ट। अब फेमा में बताओ, भार्गव एज टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ USD कितना है? यहां पर देखो 1,120,00,000, मतलब 1,20,00,000 इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, तो उसका 1% 120 लाख का है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वो डोनेट कर सकता है विदाउट अप्रूवल? और क्या क्या मैंने बोलो, 1% ऑफ प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और $50 लाख, $50 लाख, विच एवर इज लोअर। पूरे फेमा में इकलौती लिमिट है लोअर की, है ना? तो जो भी लिमिट आएंगी बच्चों, तो मैं बोलूंगा जैसे कि यहां पर आने वाला है $1,20,000, तो इस लिमिट तक फ्रीली परमिसिबल है, और इसके ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगला, Preto wants to make remittance of 6% of investment brought into India. Does RBI approve? क्या RBI इसको अप्रूव करती है क्या बच्चों? उसने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया कितना है बच्चों? यहां पर 6% है। तो अब आपको यहां पर बताना है कि क्या इसको मतलब ये करते हैं क्या, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या आप इसको रिपैट्रिएट कर सकते हो क्या? तो देखो यार, आप यहां पर बोलोगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर किसी ने खर्चा वर्चा किया है, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम हम आपको 5% तक अलाउड करेंगे ना। हाँ सर, मैक्सिमम 5% तक हम आपको यहां पर अलाउड कर देंगे। समझ में आया क्या जी? बोलते नहीं आप लोग जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या?
है ना? यस। तो मुझे बताना 5%, एक तो 5% वाली लिमिट है ना इसके अंदर, तो 5% वाली लिमिट में आप यहाँ पर रेमिटेंस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर आ जाओ दोस्तों। अब यहां पर, हाँ चलो, अब यहां पर आपका क्या हो जाता है, यहां पर आपका जनवरी का पेपर हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो जनवरी का जो पेपर है, मैं इसके बारे में एक रिव्यू जरूर दूंगा आपको यहां पर, कि पेपर वॉज इजी। इजी तो नहीं बोल सकता हूं मैं इसको, मॉडरेट बोल सकता हूँ। मॉडरेट किस सेंस में बताऊं मैं आपको, कि ये लेकिन अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से आया, बट टॉपिक वेर कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स, है ना? जो बच्चों ने 100% टॉपिक्स को पढ़ के नहीं गए होंगे, उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहूंगा, या उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा लेंदी रहूंगा। अगर हाँ, लेकिन मैं इसको, इस पेपर को मैं लेंदी जरूर बोलूंगा, एकदम कोई बहुत छोटा पेपर नहीं था ये, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं था, नॉट टू लेंदी बट नॉट टू शॉर्ट ऑल्सो, तो मॉडरेट पेपर था एक प्रकार से। तो पेपर जो था वो मॉडरेट से हार्ड के बीच वाले कैटेगरी में था। लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे थे और पेपर थोड़ा सा लेंदी भी, थोड़ा सा लेंदी था, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा किसके ऊपर चले जाता है बच्चों, मॉडरेट के ऊपर की कैटेगरी के अंदर चल जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ अपने सारे आरटीपी और पीवाईक्यू हो जाते हैं पूरे पूरे फिनिश। होप सो आप सभी लोगों को इस बैच में बड़ा मजा आया हो बच्चों, और इसी के साथ अपना ये बैच भी हो जाता है पूरे पूरे फिनिश सारी चीजें। अब सारे क्लासेस खत्म हुए, अब कहा बेटा, वो तो बहुत पहले हो गए थे, ये तो अपन ने बस एडिशनल फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग कुछ देख रहे थे, है ना? चलिए, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।